Yes. The villagers added nothing to the soup. That is false. Yes. The villagers found the soup extremely delicious. फॉल्स. जो ट्रू है उसको फॉल्स बता रहा है, जो फॉल्स है उसको ट्रू बता रहा है. दिस. यस. सेंटेंस नंबर 4. द विलेजर्स फाउंड द सूप एक्सट्रीमली डिलीशियस इज ट्रू. द सूप वॉज delicious. Okay. So this is a true statement. Next, a Chinese had taught the soldier how to make stone soup. False. That is, yeah. That is false. That is false. Okay, students. I have prepared a file. I will share at the end of the chapter. At the end of the class, I have prepared a file of this chapter, Stone Soup in Bohemia, and you will complete. You will have 4 days: Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. There will be no your English class. Do you remember? Yes. So in these 4 days you will complete this chapter and try to learn the word meaning. And I have shared some difficult words also. Have you noted them down? If anybody had not noted still, she or he should note down them, and after that exercise, difficult words, all things of chapter 6 should be done in your English notebook. Okay, and try to read again and again the chapter. Always I suggest you to do a lot of revision. Whenever you get the time, you read the chapter again and again. Okay. So today I am going to start a new chapter, a stormy adventure. Chapter 7. So get ready with that, a stormy adventure. Are you ready? Okay. So, first question of pre-reading task. Have you ever experienced a sea voyage? Sea voyage means समुद्री यात्रा. कभी आप लोग समुद्री यात्रा पर गए हो? Anybody? कोई समुद्र में गए हो? हाँ, सी देखा है तो उसमें बैठे हो जहाज में या बोट में बैठ के जर्नी की है. ओके. हाउ वॉज इट? What do you think about it? Was that enjoyable, exciting, frightening, or difficult? How did you feel? Exciting. Everybody was excited. Enjoyable, yes. Anything. It may vary person to person, right? Because we are different human beings, so it may vary person to person. Somebody may feel that it is very enjoyable, and somebody may feel that it is exciting, and for somebody it may be very frightening, right? फ्राइटनिंग मीन्स जो कि डरावना होता है. किसी को डर भी लग सकता है और किसी के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, राइट? Okay. And in question number 2, work in pairs and write a few words related to the sea. You can find out from the story itself. For example, you can see waves, ship, and some more other words are in this story. And if you underline them and add to this picture and speak up. Yes. In first paragraph, you can see sailing, sea sick. First line.
bridge. Last line of the first page at page number 42, last word bridge. Cargo. Page number 43, third line, special cargo. You can write cargo. Island. Typhoon. Have you written? You have to write total 6 words. And I think I have told more than 6. If you have written, raise your hand. Okay, read aloud all the words. Read. Yes. शिप तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना. टाइफून. टाइफून. सी वॉयड. फर्स्ट क्वेश्चन में जो है ना, सी वॉयड, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी. एनीबडी एल्स? बस रीड नहीं लिखा है और कोई बच्चे हैंड रीड नहीं कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड इफ यू हैव रिटन different words related to sea. I think a lot of students are there. 29 students are there, 30 including me. So Honey Priyadarshi, unmute yourself. Okay. Honey, please repeat last word. So completed. Now see the third question. What does the title A Stormy Adventure suggest about the story? Do you get any idea? Any one of you? Okay, Honey. Can you tell me? What do you understand by this title? A Stormy Adventure. What is the meaning of adventure? Anybody else? Anybody can speak up. Simran. What does the title A Stormy Adventure suggest about the story? टाइटल को पढ़ने के बाद कोई भी स्टोरी का जो टाइटल होता है वो स्टोरी के बारे में कुछ आपको इंडिकेट करता है, उसके बारे में कुछ बताता है. दैट इज बेस्ड टोटली ऑन द थीम, ऑन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी. ओके, सो यू मे हैव सम आइडिया दैट व्हाट अबाउट द स्टोरी इज. ओके, सो ट्राई टू. हाँ, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान. और स्टॉर्म मीन्स तूफानी. एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य जो हिम्मत से भरपूर होता है, जिसके लिए हिम्मत चाहिए होती है. एडवेंचर जो कठिन भी हो सकता है ना. एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग वर्क. तो ये स्टॉर्मी एडवेंचर है. अब ये स्टॉर्मी एडवेंचर से हमें ये पता लगता है कि इसमें स्टॉर्म के बारे में बात होगी. इस स्टोरी में स्टॉर्म के बारे में कोई घटना होगी. ये हमें टाइटल को पढ़ते ही पता चल जाता है. टाइटल का उद्देश्य ही यही होता है कि जैसे ही आप टाइटल पढ़े आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए कि ये स्टोरी किसके बारे में है.
ठीक है। तो आपको जैसे कभी कभी अब आप भी आगे आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको इस टाइप का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर उसका जो है वो आपको टाइटल बताना होगा। तो टाइटल पढ़ करके रीड एंड अंडरस्टैंड एंड गिव द टाइटल ओके टू द स्टोरी, एंड टाइटल शुड बी based on the theme and plot of the story. So such kind of exercises you will have in senior classes. So okay, now I think that all the students are ready to listen this story. I am going to read for you, and you along with that you will underline the difficult words. Okay, only underline. And when you have some time, you may search the dictionary and note down the words. But first of all, you have to complete the chapter 6. And when you feel that I am free, at that time you will see the dictionary and try to find out some meanings. That will be helpful to you to understand the story. If you do the story, if you do the difficult words yourself, you will understand the story more and more. So I am giving you this homework, and just let us start the story. I will read for you, and you try to focus on the pronunciation and difficult words. Now read the story of Vishal and Rohini's adventure journey to the Philippines. तो ये एक साहसिक यात्रा की कहानी है जिसमें विशाल और रोहिणी भी हैं, और ये जर्नी कहाँ के लिए वो जा रहे हैं? फिलीपींस के लिए. They are going to Philippines. Philippines is the name of a place. So let us see what happens. The MV Krishna gave a gentle lurch, not seasick again, exclaimed Vishal, looking at his younger sister Rohini in deep disgust. As she groaned and held her stomach, can't imagine why you came along at all. You surely didn't think it would be smooth sailing all the time. तो एमवी तृष्णा क्या है? ये शिप का नाम है. ये शिप का नाम है द एमवी तृष्णा. ओके, इसमें हल्का सा फिर से एक हल्का सा झटका लगता है. मतलब कहानी शुरू ही हो रही है कि पहली लाइन में ही बता दिया कि जो शिप है वो काफ़ी हिल रहा है, उसमें झटके लग रहे हैं. समुद्र अगर आपने देखा है तो आपको आइडिया होगा ही कि उसकी वेव्स काफ़ी फास्ट होती हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची जाती हैं. तो उसमें जहाज़ जो है वो ऐसे 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 हिलता है. और अगर वेदर ख़राब होने लगे तो उसमें ज़्यादा झटके लगने लगते हैं, और फिर तो जो होता है वो आगे हम देखेंगे ही. इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि डिस्क्राइब करेंगे. दे कैन डिस्क्राइब द वेदर कंडीशंस. सो लेट अस सी कि वो उसकी बहन जो है वो थोड़ी सी बीमार हो गई है. विशाल की हेल्थ ठीक है, लेकिन उसकी सिस्टर जिसका कि नाम रोहिणी है वो बीमार हो गई है, और वो उसके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो बिस्तर में सो रही है. और जब वो कराहने लगती है, ग्रोन मीन्स कराहना, GROANED. जब किसी को पेन होता है तो जो साउंड उसके मुंह से निकलती है वो उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है. हर्ष राज, व्हाट आर यू डूइंग? फोकस ऑन द चैप्टर. व्हाट आर यू डूइंग? हर्ष राज, take your pencil in your hands and underline the difficult words. Okay, everybody can turn the camera so that I can see your book, and you take your pencil in your hands and underline the difficult words line by line. That's good idea. हर्ष राज से मुझे आइडिया मिला कि आप कैमरा टर्न करके अपनी बुक को फोकस करिए. If you can do it easily. So, रोहिणी only made an inarticulate sound and disappeared under the bedclothes. जब उसके भाई ने कहा कि तुम ना आई होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ये जो जहाज़ की समुद्री जो यात्रा है ये हमेशा स्मूथ होने वाली नहीं है. रोहिणी मेड एन इनआर्टिकुलेट साउंड एंड डिसअपियर्ड अंडर द बेड. उसने एक अस्पष्ट सी आवाज़ की और वो बिस्तर के नीचे छुप गई. विशाल took his head in exasperation and turned to look at the calendar. विशाल को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था
एग्जास्परेशन मीन्स अनायंस, मतलब वो परेशान था। उसने अपना सिर हिलाया जैसे कि वो बहुत परेशान, अपनी परेशानी को दर्शा रहा था। एंड वो कैलेंडर को देखने लगा। 2 days more to go before they touch land. I might as well see what Papa is doing up on the bridge. Bridge is the uppermost part of a ship from where it is navigated. मतलब ब्रिज जो है वो जहाज का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ पर खड़े होकर के समुद्र का नज़ारा लिया जा सकता है, चारों तरफ देखा जा सकता है। तो विशाल ने अपना सिर गुस्से से हिलाया और कैलेंडर को देखने लगा, और तब उसने काउंट किया कि अभी 2 दिन हमें और लगेंगे धरती को छूने में। मतलब वो समुद्र में हैं तो अभी किनारे पर पहुंचने में 2 दिन का समय और लगने वाला है। जहां उन्हें जाना था वहां पहुंचने के लिए उनको 2 दिन का समय और लगेगा। आई माइट एज वेल सी वॉट पापा इज डूइंग अप ऑन द ब्रिज। अब वो अपने आप में ही बोलता है कि मुझे जाकर के देखना चाहिए कि मेरे पापा ब्रिज पर क्या कर रहे हैं। ब्रिज का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, एंड यू हैव टू लर्न दैट। नेक्स्ट पैराग्राफ। द तृष्णा वॉज ऑन हर वे टू द फिलीपींस. The ship was carrying a special cargo of food for the people of the small islands in the South China Sea, which had been struck by a devastating typhoon a few days earlier. This had swept inland, leaving a violent trail of destruction. तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि तृष्णा अपने रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसको फिलीपींस पहुंचना था। इसमें स्पेशल सामान जा रहा था जो खाने पीने का सामान था। कहाँ किस लिए जा रहा था? स्मॉल आइलैंड इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के जो लोग हैं वहाँ पर एक आइलैंड है, वहाँ काफ़ी तगड़ा तूफान आया था। डिवास्टेटिंग मीन्स जो कि विनाशकारी तूफान था, जिससे बहुत नुकसान हुआ था कुछ दिन पहले। तो वहीं पर वो लोग खाने पीने का सामान लेकर के जा रहे थे। दिस हैड स्वेप्ट इनलैंड। ये जो लास्ट लाइन है ये किसको डिस्क्राइब कर रही है? डिवास्टेटिंग टाइफून को। टाइफून के बारे में बता रही है कि जो समुद्री तूफान आया था उसने क्या किया था? लीविंग अ वायलेंट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, की बर्बादी के बहुत से निशान वो छोड़ गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। विशाल एंड रोहिणी हैड डिसाइडेड टू accompany their फादर कैप्टन कुमार दिस समर। विशाल और रोहिणी अपने फादर के साथ देने के लिए आए थे इस गर्मी की छुट्टी में। मतलब समर वैकेशन होता है तो बच्चे कहीं जाना चाहते हैं। तो विशाल और रोहिणी के जो फादर थे वो कैप्टन थे और इसलिए वो उनके साथ चले गए। तो उन्होंने सोचा घूमना भी हो जाएगा और पापा की जॉब भी है। ऑल्दो देयर मदर वॉज स्टेइंग बिहाइंड एज ग्रैनी वॉज एंजल। हालांकि माँ जो थी वो घर पे उसको रुकना पड़ा क्योंकि विशाल और रोहिणी की दादी की तबीयत अच्छी नहीं थी। The children had enjoyed the sea passage with video movies and books on board. बच्चों ने जर्नी को एंजॉय भी किया था, खूब एंजॉय किया। उन्होंने बहुत सारी वीडियो मूवीज देखी और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी और उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। बट नाउ, लेकिन अब क्या हो रहा था? द सी लुक्ड चॉपी एंड रोहिणी फेल्ट रादर सी से। अब समुद्र का मौसम जो था वो ख़राब हो रहा था धीरे धीरे और रोहिणी को सी सिकनेस हो रही थी। मतलब किसी किसी को सी का वेदर जो है वो सूट नहीं करता है। कोई पहाड़ों में लोग होते हैं जाकर के बीमार हो जाते हैं, किसी को समुद्र में जाकर के उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर यहाँ देखिए ये स्पेशल वर्ड है सी सिक। मीन्स जब वो सिक में जाएगी तो उसको सिकनेस हो जाएगी। रोहिणी फेल्ट रादर सी से। विशाल क्लाइंब द लैडर अ लिटिल अनस्टेडली एज द शिप गेव एन unexpected roll. Getting your sea legs ready, grinned chief officer, who was coming down. You are quite a seaman, really, with that rolling gait. विशाल tried to look modest. विशाल जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो वो डगमगा रहा था। You can see the picture कि वो जहाज़ तो हिलता है तो उसको चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अनएक्सपेक्टेड रोल, जब जहाज़ ज़्यादा तेज़ से हिला तो वो लड़खड़ा गया और चीफ ऑफिसर जो नीचे आ रहे थे वो उसको देख करके हंसने लगे और उन्होंने कहा कि शायद तुम अब चलना सीख रहे हो। गेटिंग योर सी लेग्स रेडी, मतलब ये बच्चे तुम समुद्र में जहाज़ के ऊपर कैसे चला जाता है इसको अभी लर्न कर रहे हो। यू आर क्वाइट अ सीमैन रियली विद दैट रोलिंग गेट, और तुम एक परफेक्ट सीमैन की तरह नज़र आ रहे हो जब तुम इस तरीके से रोलिंग गेट में हो। मतलब जब तुम लड़खड़ा रहे हो, गेट मीन्स
कि जो हम चलने की जो गति होती है, जो स्थिति होती है, उसके लिए यूज करते हैं गेट को। तो विद दैट रोलिंग गेट, रोलिंग मीन्स मतलब वो हिल गया था, इधर उधर हो रहा था, तो वो उसको देख करके हंसने लगे और उनसे कहा कि तुम एक परफेक्ट सीमैन की तरह दिखाई दे रहे हो। विशाल ट्राई टू लुक मॉडेस्ट। ये सुन करके विशाल ने कुछ बोला नहीं, बस वो विनम्रता से उनकी बात को सुनता रहा। उसने मॉडेस्ट मीन्स पोलाइटनेस, वो मॉडेस्ट होने की, पोलाइट होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, आउटसाइड द स्टफी एकोमोडेशन। स्टफी मीन्स जो सामान से भरा हुआ है। आउटसाइड द स्टफी एकोमोडेशन द सी एयर वॉज फ्रेश एंड वेट। तो विशाल रूम में था, तो वहाँ पर उसको भरा भरा सा लग रहा था, क्योंकि बंद रूम में फ्रेश एयर नहीं आती है। लेकिन जब वो रूम से बाहर आया और ब्रिज के ऊपर जाने लगा, तो वहाँ पर एयर कैसी थी, फ्रेश और वेट थी। वेट मीन्स उसमें कुछ मॉइस्चर था। विशाल टू का डीप ब्रीथ, और जब फ्रेश एयर उसको मिली तो वो डीप ब्रीथ मतलब गहरी सांस लेने लगा। देयर वॉज ए स्प्रे ऑफ वाटर ऑन द डेक एज ही क्रॉस हिज वे जिंजरली टूवर्ड्स हिज फादर इन द व्हील हाउस। जब वो व्हील हाउस में घुसा तो उसके ऊपर पानी के छींटे बहुत तेज़ी से आए और वो अपने पापा से मिलने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर उसको पानी के छींटों ने पूरा भिगो दिया और वो व्हील हाउस में एंटर कर गया। कैप्टन कुमार हैड ए वरीड लुक ऑन हिज फेस। कैप्टन कुमार इस समय बहुत चिंतित दिख रहे थे। ये कैप्टन कुमार कौन है? विशाल के फादर। ही वॉज स्टेयरिंग रेस्टलेसली एट द बैरोमीटर विच हैड फॉलन स्टीपली। स्टूडेंट्स, बैरोमीटर मीन्स दैट एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर the air pressure that is used to forecast the weather conditions also, and by seeing this we can know the weather's condition and the pressure of the air. When the weather changes, whether it may be good or bad, it can be seen through the barometer machine. So he was staring restlessly at the barometer which had fallen steeply, and when the barometer falls steeply, it means the weather is going to be bad. There may be some typhoon, etc. There may be storm. It indicates the bad weather. He looked up at Vishal. जब विशाल अंदर गया, उसने देखा कि उसके पापा चिंतित है और बैरोमीटर को चेक कर रहे हैं लगातार, और फिर उन्होंने भी विशाल को देखा। वेल इट लुक्स लाइक वी आर इन फॉर रफ वेदर सून। ऐसा लगता है कि जल्दी हम ख़राब मौसम में फंसने वाले हैं। इट इज़ टाइफून टाइम इन दीज पार्ट्स। आजकल के दिनों में यहाँ पर टाइफून आया करते हैं। टाइफून मीन्स कोई तूफान। यू नो समथिंग इज ब्रूइंग, कुछ होने वाला है। ब्रूइंग का चीज़ यहाँ पर क्या है? अबाउट टू स्टार्ट, कुछ घटित होने वाला है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट चैप्टर 6 ऑल्सो एंड रिवाइज दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टडी फ्रॉम हेयर। आई विल टीच यू फ्रॉम हेयर एंड योर होमवर्क, समर वैकेशन होमवर्क मस्ट बी डन, and I hope that all of you have done that. So now I am going to say goodbye to all of you. If you want to say something, you can raise your hands and speak up. I will listen you. Anybody? Okay, say goodbye. Bye. Okay. See you in the next week. Take care. Have a nice time.